I commence with the name of Allah, who is the most beneficent, Ar-Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, everyone. I am here with another episode of Explore Your Art Season 2. And I'm your host, Roma Sadardeen. I'm the Director Media of Art and Decor Society, Pakistan. I extend a very warm and a hearty welcome to all of you. Thank you so much for joining us. A wise man said that art speaks where words are unable to explain. इसी बात की जस्टिफिकेशन के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इंसान को इंस्पायर करती हैं टुवर्ड्स आर्ट और कैसी कौन सी चीजें हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक आर्टिस्ट में होना जरूरी है इन्हीं की एक्सप्लेनेशन के लिए वी हैव अ गेस्ट with us. She is graduated from Karachi University in Visual Studies with a past 12-year experience. उन्होंने अपना काम बहुत सी आर्ट गैलरीज लाहौर कराची और मुल्तान में किया है. आई एम टॉकिंग अबाउट मिस बतूल मांडवी. अस्सलाम वालेकुम मैम. Hello, walaikum assalam. How are you? How are you ma'am? Alhamdulillah I'm ma'am, how are you? I'm good. First of all, thank you so much ma'am for praising our platform with your presence. It's my pleasure. Okay ma'am. First of all ma'am, I want to ask, आप आर्ट को किस तरह से लेती हैं? According to you, what is art? Well, as today's topic is art inspiration in itself, uh, आपने start ही quote से किया, where you were talking about how art helps you where words cannot express. But simultaneously, for me, art is an impact on people subconsciously. मतलब आर्ट सिर्फ ये नहीं है कि गैलरीज तक महदूद है. Art is also available around us through media, through clothes, through atmosphere, interior. It affects our personality and it affects our emotions indirectly too. तो ना ही वो एक मैसेज पहुंचाता है, but it also helps us groom. It also helps us in coping up with emotions. So for me, art is everything. And so today's session is art inspiration. Sometimes a lot of students come in and they talk about how art can only be specifically for art students, but I would say no. Art is for everyone. Art is for common people. Art is for people from all kind of background because it reaches them. Visually आप जो देखते हो अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो so you don't need any language, so there's no language barrier when it comes to art. So art is not just कि वो Yes ma'am. सबके लिए है, but it also impacts in every society. In the world you can't say कि कोई भी एक सोसाइटी जिसमें ये स्पेसिफिक फील्ड ना हो. तो ये इम्पोर्टेंस अपनी खुद की अपनी जगह आर्ट जो है वो डेवलप कर देता है फ्रॉम केव आर्ट टू टुडेज 21st सेंचुरी. इट फाइंड्स इट्स वे. ओके मैम, जिस तरह आपने कहा कि आर्ट आप जिस तरह से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं उस बारे में, तो मैम अपने बारे में बताएं कि आपने आर्ट को किस तरह से स्टार्ट किया था. ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया था टुवर्ड्स आर्ट? If you talk about starting point, so let me tell you a very funny experience. It was always my sister. She was a born artist, though she did not pursue her career in it, but she always used to sketch and paint. So I guess I started from there. That also derives from a feeling of I would say वो competition वाली जो होती है when you start competing with each other right from the beginning. यस मैम. So that's where I started from. But in the way I realized how it helps me, as I told you, it just not sends a message. It helps me emotionally. It helps people understand some words. Sometimes I'm not able to express someone. तो हम बचपन में ही start करते हैं. I think everyone does it. I think you start making cards in order to express feelings. I think you start यस मैम, painting. एग्जैक्टली. Above that, जब हम teenage में पहुंचते हैं, I think a lot of students and a lot of people subconsciously does not understand, but they do doodling while listening to the lecture.
but I would always encourage that, because that is where you start remembering things. Because जब आप corner of the page पे वो जो आपका doodling किया हुआ होता है, it helps you remember the lecture very easily. So I guess, as I told you, it is not necessary that art is just for artist or specifically that particular person or from that field. It belongs to everyone. So मेरे लिए वो वहाँ से start हुआ. Then of course, as I went in the teenage phase, you start doodling, you start sketching, and then people Yes, ma'am. realize. They come and comment on your work in your sketchbook, and sometimes teachers appreciate, you have drawn a very good sketch in the corner of the page, and that's how it goes on, and you start pursuing the career. एग्जैक्टली। यस मैम, मैं आपके आर्ट के बारे में पूछना चाहूंगी कि आप जो आर्ट करती हैं वो कोई स्पेसिफिक जॉनरा है जिसको आप फॉलो करती हैं, ऐसी कोई थीम होती है, स्पेसिफिक मैसेज होता है जिसको आप हमेशा परस्यू करती हैं, या हमेशा आप डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स को फॉलो करती हैं? एक्चुअली पर्टिकुलरली जो आर्ट पीसेस मैं क्रिएट अब करती हूँ वो आर्ट इंस्टॉलेशन से बहुत माना जाता है आज के वक्त में, एंड साउंड इंस्टॉलेशन से माना जाता है. नाउ आर्ट इज नॉट जस्ट विजुअली जो आप देखते हो, बट ऑल्सो व्हाट यू लिसन टू, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज आर्ट. So I एग्जैक्टली मैम। incorporate sound in my artwork. I do sound installations, finding found objects, old objects, new objects. I collect them. I create stories around it, and मेरा काम art installation पे ज़्यादा based होता है. And then of course आप ओके। साथ में आप sketching and painting की practice तो आपकी चलती रहती है. So my particular ओके genre is art installation and sound work. मैम, And हमारे जिस एरा में हम लोग रहते हैं और जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो मेरे ख्याल में आर्ट को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। जो हम शायद मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, या जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मतलब आर्ट को अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ना चाहती हूँ तो जैसे कि नहीं, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैम, आप इस फील्ड में हैं, आप एक बहुत अच्छी लेक्चरर हैं एक इंस्टीट्यूट में, और आप इतना अच्छा काम करिए, तो आपके ख्याल में स्कोप क्या है आर्ट का, फाइन आर्ट का क्या स्कोप? such a funny thing is that किसी भी फील्ड में स्कोप नहीं होता until unless you are very good with it. So हर फील्ड में if हम्म। your expertise are lying in that, you have talent for it, which means आपके लिए दरवाजे खुले होंगे. So you have a lot of opportunities. So opportunities are intact with talent and skill, and how much you're groomed in that particular area. When it comes to art, it depends. There हम्म। are various fields. Like when you go to fashion, there's architecture, there is fine arts. यस So मैम। in fine arts, जो कि मेरी particular field है, उसमें मैं ये कहूँगी कि आपका thought जो है वो clear होना चाहिए. So once you know and have हम्म। that talent of putting that thought, the original thought, I would say, okay, as we are trying on this platform of our art and decor community to produce original artwork. We are trying, the director of and the CEO of this platform also has a very good यस। vision, and the process is of trying to create awareness that copying a work, an artwork, would not create an artist. It is about the यस मैम। original thought that we want to put एग्जैक्टली। forward, the idea. Maybe the skill is not developed. If you look at Sadhgan का काम जब उस हम्म। जमाने में they did not count it skillful, but today it is it is considered like that because वो original thought था. And look at his work, it's beautiful. It's so difficult for anyone to compose that kind of art piece. Similarly, I would say कि आर्ट पीस जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, राइट राइट फ्रॉम द थॉट. तो जब वो आपके पास होगा, द आर्टिस्ट विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीवन वुड बी एबल टू सी. इसी बात को जो है मद्देनजर रखते हुए आई वुड टेल द यंगस्टर्स ऑफ टुडे कि फील्ड के लिए आपको ये नहीं देखना ज़रूरी कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है. वंस यू एंटर इन दैट फील्ड, इन दैट प्लेटफॉर्म, आपको खुद ही दरवाजे खुलते नज़र आते हैं.
And yes, it is a struggle. Let me tell you, it's not easy. But in every field, isn't it like that? In every field, don't you think you need to invest first and then it gives you back? Every field takes time. Every field requires a lot of effort and a lot of investment of time and money both. And so is it with art. The tricky part is it's just that it looks like a magic. It looks magical from really far away, Hmm. but every magic has tricks. So yeah, Exactly. that's simple. ओके मैम, अभी रिसेंटली आपने, ओके ओके मैम, आई वाज आस्किंग कि अभी रिसेंटली आप कंपटीशन जो हमारा हुआ है आर्ट एंड डेकोर सोसाइटी का, उसमें आप जज भी कर रही हैं और हमारे साथ बहुत से पार्टिसिपेंट भी हैं जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया। तो मैम, उनकी आर्ट को देख के आपको क्या रियलाइज हुआ कि मतलब किस तरह से वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? कोई ऐसी एडवाइस जो आप उन लोगों को करना चाहें कि वो किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई एडवाइस, व्हाट डू वांट टू आस्क देम? I would say enroll in workshops, enroll for classes, हम्म। apart from regular studies जो हमारी होती है। As you told me, सोसाइटी में उसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं कही जाती, तभी शायद हफ्ते में एक दफ़ा टाइम टेबल में आर्ट का लेक्चर रखा जाता है। लेकिन slowly and steadily, I think things are changing. People are also incorporating हम्म। art in lesson plans for English, science, maths, simple lesson plans में भी आर्ट को incorporate करके बच्चों को समझाया जा रहा है। तो आई थिंक अब जो जी। है टाइम है कि बच्चों को वर्कशॉप्स और इसकी तरफ आना चाहिए। टेक आर्ट ट्यूशंस इफ यू वांट टू लर्न स्किल, क्विकली लर्न देम एंड go on with it so that skill आ जाएगी। तो once you have that, I think you can proceed very easily. मैम, आर्ट एंड डेकोर सोसाइटी इंशाल्लाह अपनी वर्कशॉप स्टार्ट कर रही है, तो उसके लिए भी हम लोग यूं चाहते हैं कि जो पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी करें। आपकी बहुत अच्छी कोऑपरेशन रहेगी हमारे साथ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू मैम कि आप इतना अच्छा आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। और अगर मैं अपने पार्टिसिपेंट्स से कहूंगी कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो जो आप मैम से पूछना चाहते हो, तो यू कैन इजीली आस्क अस if anyone asks any question. You can raise your hands so we can ask you कि आप लोग people have copied. Okay. अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक क्वेश्चन है तोबा मुजम्मिल की तरफ से कि many people have copied the paintings in the competition, which should be discouraged, hmm, and what about your hmm. judgment criteria? Please brief. Okay. Hi Tuba, how are you? Very interesting question. Um, this is, you know, this is a question that every participants have. कि जब हमारे पास pile of artwork आते हैं, some of them are copied, but very skillfully. That is also a skill, I Hmm. must say. Some of them are created on their own, but not very skillfully. So Hmm. इसके लिए मेरे पास ये जवाब है। हम अभी जिस स्टेज पे है, आई मीन टू से नॉट अस, आई मीन टू से पाकिस्तान, हम अभी जिस स्टेज पे है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड that even when you copy a sketch from a photograph is also called copying, even Hmm. if until and unless you have taken the photograph by yourself. So every work that you're doing is actually a copied version. One. Number two, ये जो दिमाग ना बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है। What does it do is, for example, आपने बहुत पहले Hmm. कोई चीज़ देखी होगी, it subconsciously stores it. जब आप आर्ट वर्क करने बैठते हो, it comes naturally to you sometimes,
एंड देन वो ऑटोमेटिकली वैसे बन जाता है, बट वो कॉपी नहीं किया होता, पर हमें दिख रहा होता है कि ये यहाँ से देखा हुआ है. So there is ambiguity when it comes to a platform like this. हाँ, जहाँ पे एग्जैक्ट हमें पता है कि ये विदाउट एनी क्रिएटिव इनपुट एज इट इज कॉपी किया गया है, ऐसा नहीं है कि दो तीन रेफरेंस को देख के बनाया है, बिकॉज एवरीवन डज दैट. दो तीन रेफरेंसेस ऑन दिस स्टेज स्पेशली, रेफरेंसेस को देख के आप कॉपी करते हो. समटाइम्स कहीं से आपने देखा होता है और वो इम्पैक्ट आ जाता है आपकी ड्राइंग में, जो कि सामने वाले को देखने में ये अज्यूम होता है कि यू नो दिस मस्ट हैव बीन कॉपीड. सो आई वुड इनकरेज एवरीवन कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग अपने रेफरेंस पिक्चर साथ सेंड करें. रेफरेंस पिक्चर यानी आप ये बताएं कि यू नो दिस इज हाउ आई हैव थॉट ओवर इट. आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो साथ में अटैच करके सेंड करें. इट रियली हेल्प्स द जज टू अंडरस्टैंड योर माइंडसेट कि आपने ये आइडिया को इनकॉर्पोरेट किया है एंड देन यू हैव क्रिएटेड दिस. सो इट्स जस्ट नॉट सारे काम जो है, इफ यू लुक एट इट, पोर्ट्रेट्स, ऑफ कोर्स वो अगर मैं आपका पोर्ट्रेट देख के भी बना रही हूँ, दैट इज आल्सो अ स्टेप ऑफ कॉपिंग अंटिल एंड अनलेस यू पुट योर ओन स्टाइल इन इट. तो वो इस स्टेज पे जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल के, अपना स्टाइल इनहेंस करना इनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है. तो ऑफ कोर्स we are little softer on that side because discouraging those students is also not good, जो अपनी मेहनत से Exactly, स्किल ma'am. से काम कॉपी करते हैं, जिसे वर्ड कहते हैं, that you're going to copy this work. बट यस, वी टोटली डिस्करेज प्लेजरिज्म, जो कि एक आर्ट वर्क हुआ था और हमने उसको कैंसिल भी कर दिया है उस पेंटिंग को, विच इज यूजिंग द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिस्ट एज इट इज एज योर वर्क. when you call someone's work yours, that is wrong, but when you create your own version of it, that is not wrong. But taking pictures. मैम Yes, एक Tuba, और क्वेश्चन exactly. Oh, मैम एक और क्वेश्चन exactly. है. हाँ. Copying it by drawing, it is not an issue, but taking picture of someone other's work is wrong. Totally, it's wrong. And आपको लगता है कि हमें नहीं पता चलता? Of course, everyone knows it. तो जब वो पोस्ट होता है, if a layman can understand कि it's been copied, तो हम जब जज करते हैं, obviously we know it, and we can totally Exactly. see it. तो वो ऑफ कोर्स इफेक्ट करता है. बट यस, हम अपनी ग्रेडिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट आपके सामने नहीं रखते. ऑफ कोर्स वी डिस्कस, वी हैव अ प्रोफेशनल पैनल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ you guys. Exactly. There is Mr. Hamza, there is another artist, a calligraphy artist. So whoever sits in the panel, we have everything in front of us. And then उसको देख के हम grading जो है उस हिसाब से करते हैं. And as you said, exactly what I said, Tuba, I totally agree with you. I think मैंने अभी 5 मिनट पहले यही बात की थी कि plagiarism, आप किसी और का काम as it is copy करके अगर अपना लगा लोगे तो दैट इज टोटली रॉन्ग. और अगर आप अपना क्रिएट कर रहे हो कॉपिंग, तो हम उसको फिर भी डिग्रेड करते हैं. वी डू नॉट इनकरेज दैट until unless someone has enhanced and put its own creativity in it, changed it, manipulated it, and then have displayed it. So that's also creativity, isn't it? मैम एक और क्वेश्चन आया है मसूद की तरफ से. मियां मसूद मैम, अगर किसी पर्सन स्केच बनाया तो इट्स मीन उसने देखा है कहीं से, अदरवाइज अगर किसी ने नहीं देखा तो कैसे बनाया, वो अगर कॉपी करना है इसको कहते हैं. Sorry, I'm He was saying, जो आप पहले बता चुके हैं, आई थिंक उन्होंने मेरे ख्याल से लेट ज्वाइन किया, तो ही वाज सेइंग कि जो स्केचेस हम बनाते हैं वो भी हम देख के बनाते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ हम किसी को कॉपी कर रहे होते हैं. सो इसी बारे में था वो क्वेश्चन. all right, all right. Roma, please start the session again. Okay.
ओके, आई एम रियली सॉरी गाइज, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग क्वेश्चंस का सेशन दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं. सो इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क. सर हमजा, काइंडली वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दें जो लास्ट टाइम किसी मोहसिन, आई थिंक आप कह रहे थे, उन्होंने पूछा, या मसूद. एक्चुअली मैम क्वेश्चन ये था कि क्या अगर हम किसी की पिक्चर देखकर उसका स्केच या पोर्ट्रेट बनाते हैं तो वो भी कॉपीराइट में आता है? बिल्कुल, ऐसे सेट कि जब तक आपने खुद फोटोग्राफ नहीं ली होती तब तक वो काम आपका नहीं कहा जा सकता. इट शुड बी कोर फ्रॉम योर एंड, फ्रॉम फोटोग्राफ. बल्कि आइडिया भी अगर आपका नहीं होता और आपने नेट पे किसी का आइडिया देख के एंड देन यू हैव प्रोड्यूस्ड, वो भी कॉपीराइट में काउंट होता है. बट अगेन एज आई सेड, आप कितनी चीज़ों को इसको कॉपीराइट में काउंट करोगे. सो my conclusion is that you have to give a little space and a little room to these young talent, and you can't be so harsh on treating them, because as I said कि scratch से किसी का भी काम जो है until that artist is really pro, वो उसका नहीं हुआ होता. तो मैं ये कहूँगी कि अभी encouraging the youth of Pakistan, it is very important कि to understand कि let's look at the first criteria is skilled, and then idea, and then whether it is copied or not. And of course, it's very important, the copying part, though it comes in the end. और जहाँ plagiarism आता है वहाँ आप बिल्कुल cancel कर दें, obviously. Any more questions? थैंक यू सो मच मैम. लेकिन एक मसूद का अगेन ये क्वेश्चन आया कि मैम फिर स्केचिंग में तो कोई चीज विदाउट कॉपीराइट नहीं है. अगर आप if you are willing to do it तो of course है. As I said, आपकी जब प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है और जब आप आंखें बंद करते हो, जो इमेजिन करते हो, और जब आप वो बनाना शुरू कर देते हो, पहली चीज़ वो कॉपीराइट हुई. सेकंड चीज़, अगर आप जाके कोई चीज़ की फोटोग्राफ लेते हो विद द क्रिएटिविटी ऑफ योर्स, यानी आपका एंगल, आपका कॉन्सेप्ट, आप सेट बनाते हो. जैसे फोटोग्राफी अगर आप देखोगे तो उसके लिए प्रॉपर सेट बनता है. सेट से मुराद ये नहीं है कि आप जाके स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर सकते. स्ट्रीट फोटोग्राफी भी एक चीज़ होती है जिसमें आप जाके स्पॉन्टेनियसली कैप्चर करते हो इमेज, बट वो कैप्चर भी करना एक टैलेंट है, वो एक स्किल है. एंड व्हेन यू कैप्चर दैट राइट फोटोग्राफ एट द राइट एंगल, तभी तो नेचुरल ज्योग्राफिक पे अगर आप देखेंगे तो उसकी मैगजीन में भी बेस्ट फोटोग्राफ का जो अवार्ड मिलता है, दैट इज बिकॉज दे कैप्चर द राइट मोमेंट एट द राइट टाइम. एंड वो ऐसा नहीं होता कि फ्लूक में मिल जाता है, जैसे हमने वो स्नैपचैट पे आपके फ्लूक में अच्छी इमेज आ गई. वो दे वेट फॉर आवर्स, they wait for the eagle to fly in, and they wait with the camera for hours, चाहे जो भी weather हो, and then they capture that moment. That's art. Why wouldn't you call that as फिर तो हम ये भी कहेंगे ईगल तो खुदा ने बनाई है. तो अगेन एज आई सेड, एम्बिग्विटी सब में आती है. ओके, सबके क्वेश्चन मैम रिलेटेड टू कॉपीराइट. तो एक चीज का एडिशन मैं यहाँ. जी मैम. जी, जैसे मैसेज आया है कि जब तक एक्सपर्ट नहीं बन जाते तो कॉपी कर सकते हैं ना. तो मेरा यही जवाब है, एक्चुअली नहीं कर सकते. आप अगर आपको पता है कि मेरे पास आइडिया अच्छा है और मैं अच्छा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड अपने ओन पे करने की कोशिश, व्हेन यू नो यू कैन डू बेटर, व्हाई वुडंट यू डू इट? Isn't that the personality of a good human being? एग्जैक्टली मैम, ये क्वेश्चन रेज होता है ना, तो अभी और भी क्वेश्चंस हैं मैम. द लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे सामने कोई चीज या और हो और मैं उसको अपने स्केच बनाऊं तो कॉपी है ये? वो पिक्चर मैंने किसी और से तो नहीं ली. No, it's not copying, it's called still life. इस काम को particularly still life कहते हैं. अगर आप बड़े आर्टिस्ट, if you look at the artists from really old masters props models बैठाते थे. Even they used to use mannequin and then उस पे drapery डाल के sketch बनाते थे. So no, that's not copying. That's again, you have put that particular object with an idea.
विद अ थॉट कि मुझे मेरा वास इसी एंगल में चाहिए, मेरी लाइट की पोजीशन इसी एंगल में चाहिए, एंड देन विद द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने उसकी स्टडी की, तो वो एक पूरा आपका खुद का भी तो एक मेहनत का प्रोसेस है. So how can you ignore that? मेहनत You का can't प्रोसेस, ignore. एग्जैक्टली मैम. ये चीज शायद इस कॉन्सेप्ट की हमारे पास वो है कि हम उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे कि कॉपी करने का कॉन्सेप्ट क्या है. कंटिन्यूअसली हम यही बात करें कि अपनी एफर्ट्स को पुट करना. अगर आप किसी चीज को कॉपी कर रहे हैं, अपनी एफर्ट्स को उसमें पुट करें. और यही कंटिन्यूअसली बात हो रही है. अगेन मुझे ऐसे ही क्वेश्चंस मैम नजर आ रहे हैं. मैम, अगर मैंने सन राइज का व्यू देखा है और कोई स्केच बनाऊं तो वो ठीक है. Again, सनराइज. हाँ, अगर सनराइज अगर आपने देखा है और ऑफ कोर्स आप उसको देख के बना रहे हो, बहुत दफ़ा ये होता है कि सनराइज में आप वो ऑब्जर्व कर रहे होते हो, बट अ लॉट ऑफ टाइम जो स्केच हमारे पास या पेंटिंग हमारे पास आती है, द स्टूडेंट्स क्लेम कि हमने देखा हुआ होता है, बट वी डू ऑल्सो नो कि अगर एक येलो स्ट्रोक की लाइन उस इमेज में भी ऐसी ही आ रही है, और जब आप भी उसी पर्टिकुलर एंगल में पोजिशन में पुट करते हो, तो वो हमें एम्बिग्विटी हमें देती है काम में. तो उससे हम जो है वो समझते हैं कि आपका अपना इमेज या अपना आइडिया नहीं है. और जब आप अपने रैंडम खुद ही बनाते हो, मे बी विद अ लिटिल बिट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम दिस इमेज टू दिस इमेज, आप हमें शेयर भी करो अगर प्रोसेस वर्क जो है कि you know we saw this part from this image and then we saw this part, then I went to see you on my own and took a silhouette image of a horse, maybe a man riding a horse, and then you copy it. So that is different. मैं यहाँ पे मसूद मैम मैं एक आपसे चीज ऐड करना सॉरी. Yes, Hamza. मैम मसूद आपसे खुद एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. तो मसूद लाइन पर हैं, काइंडली अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछें. एंड अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. क्वेश्चन ये था ना, जिस तरह आपने कह दिया मसूद आपके इंटरनेट का इशू है, काइंडली रीचेक करें. खुद से बना बंदा कोई स्केच वगैरह बना, तो खुद से कभी बना सकता है ना कि मैंने कोई चीज देखा नहीं मेरे जहन में, तो वो नहीं आ सकता ना. अगर हेलो. Yeah, Masood, your sound is not clear. I'm so sorry. We are not able to hear you. सॉरी मसूद, आप अपना क्वेश्चन जो है वो उसको काइंडली दोबारा से रिपीट कर दें, क्योंकि वो अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन यही था ना कि आपने कह दिया पहले ही कि अगर आप खुद अपनी जहन से कुछ बनाए तो वो कॉपी मतलब कंसीडर नहीं होगा कि ये कोई कॉपी वगैरह इस तरह. तो खुद जहन से तो तभी बना सकता है ना कि कोई चीज हमने देखा है तो जहन से बना सकते हैं. अदरवाइज अगर हम सपोज करें, लेट सपोज कोई इंटरनेशनल मीडिया से हम कोई चीज वगैरह, तो किसी ने तस्वीर ली, हमने तो खुद नहीं ली है वो, तो क्या हम अगर वो सामने रख के बनाया जाए तो ये वो कॉपी वगैरह में आ जाते हैं या नहीं? हाँ, देखिए वही बात हो गई ना कि हाँ स्लाइटली कॉपी में आ जाता है. जैसे एक बर्ड है, ठीक है, अगर आपने उसकी खुद जाके इमेज नहीं ली है या खुद सामने रख के नहीं बनाया है, और किसी वेल नोन फोटोग्राफर ने जो है वो पिक्चर ली हुई है, और उसको आप कॉपी करते हो, तो वो कॉपी वर्क ही हुआ. उसको आप नेगेटिव में कितना ले जाते हो, पॉजिटिव में कितना ले जाते हो, वो हमारा काम होता है एज ए जज. बट उसे कहा तो कॉपी वर्क ही है, बट अगेन थॉट प्रोसेस में वो आ जाता है कि इसको कॉपी की कौन से स्टेज पे रखना चाहिए. I guess there's nothing in the world as black and white, is it? The world is full of gray shades.
Yes, So there's ma'am. nothing right or wrong exactly until and unless, as I said, plagiarism. That is total cheating. कि किसी और के नेट पे से आप तस्वीर उठाओ and you claim it as your own. But for example, let me give you a very nice example, Masood. For example, if I'm sitting here, you take my picture and you say, you know what, that is not Ma'am Batul, that is me. That is wrong. Until unless, whichever way I'm sitting, my pose and my dress, and you copy me exactly the same, then it can be called you. Until unless, it won't be called you, would it? बहुत ही funny example है, but I'm going to give you a very raw explanation of it. So it is up to the viewer, it is up to the judges, and it is also up to the artist also. Sometimes the artist has the authority कि वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है. जैसे अगर आप देखेंगे एक आर्ट पीस आते हैं अब फाउंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मिला है आप उसी को यूटिलाइज कर लें, कॉलिंग इट एज योर ओन वर्क बाय इनपुटिंग योर ओन आइडिया इन इट. उसमें आपने साउंड डाल दिया, आपने उसमें आइडिया डाल दिया, एक स्टोरी टेलिंग कर दी, उसको पूरा चेंज कर दिया, तो वो भी तो एक चेंज हो गया ना, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया. तो डुशॉम्प ने भी ऐसे ही किया था. मार्शल डुशॉम्प वाज वेरी वेल नोन आर्टिस्ट. उसने एक उठा के एक ऑब्जेक्ट उठा के अलग कॉन्टेक्स्ट में रख के कह दिया कि दिस इज आर्ट पीस बिकॉज आई हैव जस्ट चेंज द कॉन्टेक्स्ट वेयर इट शुड बिलोंग टू एंड आई पुट एन आइडिया इन इट. सो नाउ इट्स माय आर्ट पीस. सो दैट कैन चेंज टू. I hope I'm clear, Masood. Yes, Masood. Hope कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, सब क्लियर होगा. Masood, can you hear us? रिपीट कर दे. उस टाइम नेट का मसला बहुत ज्यादा है, तो मुझे आवाज नहीं आ रही. Sorry, Masood. एक्चुअली मैम मसूद के इंटरनेट का इशू है, तो वो कह रहे हैं No आप issue. प्लीज कंटिन्यू करें. लारैब, आपकी तरफ से एक Okay. रिक्वेस्ट आ रही है, तो इनकी रिक्वेस्ट ये है कि हाँ, हम किसी चीज को किस नजरिए से ऑब्जर्व करना चाहिए. That's a very tricky question. ये तो वो वाली बात हो गई कि अगर एक ऑब्जेक्ट या एक शख्स आपके सामने आता है तो हम उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. It all depends on On us. on the viewer, on your thinking process, on how you want to observe the world. Not only that, sometimes the artist does manipulate and play with your mind, and they take you through a process. And वो process artist को तभी आ जाता है when they learn skill through, as I said, workshops and art studies, and they go through the platform of art degree. जब उस प्रोसेस से गुजरता है तो आर्टिस्ट नोस कि आप किस तरीके से लीडिंग पाथ बनाता है आपके लिए, कि आप उस आर्ट वर्क की तरफ किस तरीके से पहुंचो और उस आर्ट ऑब्जेक्ट को किस नज़रिए से व्यू करो. उसके बाद अगर आप देखें तो हर आर्ट पीस के कॉर्नर पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है कि व्हाट इज द आर्टिस्ट ट्राइंग टू से. सो वंस यू रीड, फर्स्ट यू लुक एट द ऑब्जेक्ट. आपकी जो पहली ऑब्जर्वेशन होती है वो आपके अपने जिस एरा में और जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे होते हो, आप उसको उस नज़र से देखते हो. आपका मूड क्या है, आप किस इमोशन से गुजर रहे हो. देन व्हेन यू रीड द कॉन्टेक्स्ट, दैट्स द गेम दैट द आर्टिस्ट प्लेज. देन इट चेंजेस योर पॉइंट ऑफ व्यू. Actually, it teaches you two things. It teaches how one object can be seen from different angles because every coin has two sides. And इसी तरीके से आप हर situation, हर object को अपनी observation, अपनी skill, अपने experience, अपने life circle का जो आपका जो life का environment होता है वो input डालते हो आप उस object के अंदर. वही चीज़ जो जिस observation से आप देखते हो और जब आप उसको आर्ट वर्क पे लेके आते हो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. जब आप नॉर्मली कॉपी कर लेते हो वो तो कॉपिंग हो जाता है, पर आप किसी चीज को देख के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी ऑब्जर्वेशन से
by putting your emotion in it. जब आप बनाते हो तो उसके every stroke of your paintbrush, every stroke of your pencil comes out in a very different way. That is where the emotion is being conveyed. That is where the art actually starts. So बहुत सारे I guess questions और queries का यहीं पे जवाब मिल गया होगा. मैम ये बहुत क्योंकि मुझे भी मुझ जैसी बंदी को जिस तक आर्ट से थोड़ा कम क्योंकि मेरा स्केचिंग और इस तरह मुझे इतनी चीजों की क्लैरिफिकेशन मिल गई है, तो ऐसे लोग जो ये सब करते हैं तो आई थिंक उन लोगों को तो क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से मिल गई होगी. सो आई थिंक ये क्वेश्चंस अब द एंड हो गया क्वेश्चंस का. मैम एक क्वेश्चन आया है सोनिया की तरफ से कि मैम मैं स्केचिंग कर रही हूँ, मेरा स्टार्ट है, तो मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन दे दे कि मैं किस चीज को फॉलो करते हुए अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकती हूँ और कैसे अपने वर्क को बेटर वे में मतलब यूटिलाइज कर सकती हूँ. I think इसके लिए Sir Hamza, I think no one would be better than you to contact her, and she has reached our platform of Art and Decor Society. So I would say stay in touch with this society. New things are coming up. This team has amazing ideas of how to encourage and how to show the path जो आप youngsters को इस तरफ लेके आए. They have a lot of questions as we are facing right now also कि हम कहाँ जाएं and where should we learn it from. So stay tuned to this society and you will be updated about it. Thank you so much, ma'am. As No problem. everybody knows that कि मैं होस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे क्वेश्चंस का काम ही ऐसा जा रहा है. तो एक और क्वेश्चन आया है कि मुझे डेली कितना टाइम देना चाहिए अपनी आर्ट वर्क को प्रैक्टिस के तौर पे कि मैं एक गुड स्टूडेंट बन सकूं, क्योंकि मुझे आर्ट बहुत पसंद है. ये सबा की तरफ से क्वेश्चन है. Sabazar, that is very interesting question. A student asking कि हम homework को कितना time दें, that is very enthusiastic of you. So first of all, I would say 2 hours is perfect for any work. Chahe you take it from life skill to maybe a book reading habit, or maybe a simple habit as prayers that we do every day. 2 hours maximum if you give to any work, जिसे कहते हैं every day, so it would lead you somewhere. Trust me. If not becoming a good artist, if you give your life that particular 2 hours of constant concentration to any work, it would take you somewhere. So that is one answer that I would like to give you. Secondly, जो particularly आप skill की बात कर रही हैं, I would say कभी बंद नहीं करो. Your observation, your eyes, and your mind should be painting all the time. It should not stop. It should not stop while you're traveling. It should not stop while you're sitting idle. It should not stop while you're watching TV, because even when you're watching movie, if you don't realize they all are artists who has created that art piece, and you can see so many beautiful observation over there. They have used so many different techniques, and think about it, how would they have achieved that? Simple cartoons dekho. I mean, look at how cartoons started. I mean, if you look at the Disney history, it was very difficult. They were just artists in a room who started that, and it wasn't an easy job, was it? So I guess at every stage of life, your eyes, and I would say your mind, especially your subconscious mind, should be alive. That's it. थैंक यू सो मच मैम. एक और क्वेश्चन है मिस जानवर की तरफ से. डज आवर ओपिनियन अबाउट द आर्ट वर्क चेंज द लॉन्गर वी लुक एट इट? The opinion does not change. Yes, you start looking at the details. It's just like a human character. The deeply you look at, the more flaws you see, and the more beauty you find in it. So longer you stare at an object makes you see more details, and the changing of the artwork depends again. आप कितना कौन से माइंडसेट से देख रहे हो.
कभी आप एक दिन बहुत अच्छे मूड में देखोगे आपको कुछ और नज़र आएगा, बुरे मूड में देखोगे तो आपकी पेंटिंग कुछ और नज़र आएगी, और आप मतलब ऑब्जेक्ट कुछ और नज़र आएगा और पेंटिंग का पोर्ट्रेयल कुछ और होगा। तो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग एज द लाइफ गोज ऑन। मैम एक और बच्चे की आपको रिक्वेस्ट है, स्पेशल आपके लिए, कि इफ फजल रहमान की रिक्वेस्ट है, इफ आई सेंड माय स्केचेस कैन यू सी इट? As I'm here on a platform, and as I said, hold on to all those who are excited about sharing their work and want to learn more. New things are coming up, so hold your horses. We will update you guys soon. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम एक राफिया भट्टी का मैसेज है कि मैम आई लव आर्ट, खास तौर पर रियलिस्टिक पेंटिंग का क्रेज है मुझे, तो उसमें कैसे बेहतर करूं? Time. With time, you will inshallah learn and you will inshallah improve. Practice. Oh, there you go. Manu has written just that. Practice makes a man perfect. I got the quotation. Thank you, Manu. ओके आई थिंक सबके क्वेश्चंस मेरी तरफ से तो एंड हो गए हैं, सो मिस रोमा प्लीज ओके कंटिन्यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा हमें टाइम दिया, इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। वी आर रियली You're थैंकफुल टू welcome. यू मैम। ओके Always सो welcome. मैम, okay ma'am, so inshallah in coming weeks we are planning for a workshop, so inshallah ma'am Batul Mandvi हमें वहां पे join करेंगी। और that's all from our side ma'am, thank you so much once again, thank you so much ma'am। Allah Hafiz. okay, Allah Hafiz ma'am। तो बच्चा अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हम हमारे प्लेटफॉर्म पर अपना वीडियो कैम ऑन करके वो एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता है। okay, so it's a good idea as well। So anyone okay, of if you interested? anyone want, so you can share your ideas, your work, whatever you want। और शायद इतनी देर में हमें सर ज्वाइन भी कर लिए। Is anybody is interested? Sir Ashraf Hira is my teacher. Okay, we are also waiting for Sir Ashraf Hira. So we are waiting for Sir calligraphy participant. सर का नेटवर्क इशू की वजह से सर हमें टाइमली ज्वाइन नहीं कर सके, सो वी आर आल्सो वेटिंग फॉर सर अशरफ कि वो हमें ज्वाइन करें और हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें उनका। आई वांट टू शेयर माय वर्क। ओके सर, यहाँ पे मुंतहा मुंतहा है जो अपना वर्क शेयर करना चाह रही हैं। प्लीज मिस मुंतहा आप अपना कैम ऑन करें और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। ये फर्स्ट स्केच था तुम्हारा। ओके नाइस। ओके गुड
मैं एक चीज साथ के साथ ऐड करना चाहूंगा मिस रोमा, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। मिस मुंतहा वो वन ऑफ देम कि जिन्होंने बहुत ट्राई की कि वो एक्सप्लोर योर आर्ट सीजन 2 में पार्टिसिपेट कर सकें और उनका फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, तो इसके लिए उन्होंने 3 days वेट किया कि वो पार्टिसिपेट कर मुंतहा, सकें। सो हैव शी पार्टिसिपेटेड? वो हमारे साथ रही हैं, मतलब पार्टिसिपेट किया इन्होंने? जिन्होंने एक्सप्लोर योर आर्ट सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट मुंतहा, बहुत अच्छा वर्क था आपका, विश यू गुड लक। एनीवन एल्स जो अपना कोई काम या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? Yes, Mahnur Mozam, sorry, is with us. Okay, Mahnur, आप भी अपना वर्क शेयर कर सकते हो। There's something interesting on Osama's screen. Osama, ये आपने जो अभी जो पिज्जा टाइप कुछ दिखाया है, is it was an art? और महानूर? यस मैम, ये आर्ट ही है, ये मैंने खुद स्केच किया है अपने रेस्टोरेंट पे। ये देखें, ओके, ये पेंटिंग भी मेरी सर खुद इसको की बनाई हुई है। नाइस। बट सर वो दोबारा से वही अपना दोबारा दिखाएं, वो जो आपने लोगो डिजाइन किया है या आपको जो आर्ट, वो पिज्जा टाइप, दैट्स इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस सर, मैं आपको अमेजिंग। एक और दिखाता हूँ। ये देखिए, वेरी नाइस। तो ये उसामा, wings भी आपने ये पार्टिसिपेट यस मैम। आपने पार्टिसिपेट किया है सेशंस में हमारे सीजन 2 में? नहीं नहीं नहीं, मैं दरअसल शादी थी कजन की ना, तो मैं उधर ही बिजी था, तो कल ही वापस आया हूँ लाहौर से ना। ओके, सर हमजा, आप हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल, इसे अब वाइंड अप करते हैं एट द एंड, एंड सर जब हमें ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। फजल अपना आर्ट वर्क दिखा रहे हैं, तो जी सर। सर मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, क्या आपका एक ड्रीम था कि आप आर्ट को जो है वो एक्सप्लोर होता देखें, तो सर अब आप देख रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस ड्रीम के साथ मैंने इस सोसाइटी की बुनियाद रखी, तो कुछ हद तक वो फुलफिल हो रहा है। इंशाल्लाह हम लोग इसे एग्जैक्टली सर, मैं वही देख रही इंटरनेशनल हूँ, तो लेवल पे मुझे ले जाएंगे, और हम एक ऐसा इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म सर, सब लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे जहां पर सब लोग अपने आर्ट को एक्सप्लोर करें और स्पेशली पाकिस्तान के वर्क को एक्सप्लोर करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़रीन, यू हैव अ फैंटास्टिक मैम वर्क, एक और आर्ट दिखाता हूँ मैं बहुत आपको अच्छा, ना अपना, जबरदस्त। ये लास्ट है। जी 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 सर, ये श्योर। देखिए, फजल, गुड। उसामा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ओके, सो जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे सर अशरफ हीरा साहब का, सो वी आर सेइंग के जैसे ही सर अशरफ हमें ज्वाइन करेंगे, हम लोग दोबारा से आप लोगों को लिंक सेंड कर देंगे, और दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच उसके फॉर बाद ऑल ऑफ आए। यू, आप लोगों ने इतना अच्छा हमें टाइम, सॉरी, ओके, सो बहुत अमेजिंग वर्क है आप लोगों का। इंशाल्लाह आफ्टर नमाज हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज।